Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter globalization. And under this chapter we have started our subtopic India and globalization. And as we have seen, we have started our discussion regarding this topic that for our country, the globalization is not a new concept because from ancient time we believed in trading, trading of goods and services were going on. People used to move from one place to another place, and yes, of course, the scale was very low, the size was very low, but the idea was there. And what we find that during colonial period, this the idea of globalization was still there. During the colonial period, India became exporter of raw materials and consumer of finished products. Okay, and then we got independence in the year 1947, and when we got independence, in front of us the most important challenge was the economic backwardness. We were facing economic backwardness, and it was also considered that our indigenous industries needed some protection. They needed some protection from competition. For that purpose, what was done that some barriers were put on the trade. Foreign trade was not free. If there is import of anything, then duties were charged. On export also duties were charged. Not only this, we also accepted this policy of protection, that is to give in order to give up healthy environment to our indigenous industries. This protection policy was followed कि बाहर से कोई भी सामान अगर import होता है, if something is imported from outside, then there should be that custom duty, है ना. This custom duty will increase the price of the product, and in this way the demand for the foreign goods will be reduced, and in this way the indigenous industries will be protected. And similarly, there was also the system of permit and license and all. These were to restrict the economic activity. The economic activity was regulated and it was not free. So we were very much inspired by the planned economy of the USSR, because we have adopted the mixed economy, है ना. हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था. न तो हमने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया पूरी तरह से, न हमने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, बल्कि हमने उसके बीच का रास्ता निकाला. और बीच का रास्ता क्या है कि कुछ चीज़ों में हमने पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से सारा कुछ दे दिया, और कुछ चीज़ों में हमने प्राइवेट सेक्टर को सब कुछ दे दिया, है ना. और जॉइंट सेक्टर्स भी हमारे यहाँ, जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलके काम करते थे. तो हमने इस मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, और इसी के साथ हमारा जो एम था वो था सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि सोशलिज्म विथ डेमोक्रेसी, है ना. बट व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड दैट इफ वी सी द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट हमारा था 1980s में, द ग्रोथ रेट वाज वेरी स्लो. सो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट का ग्रोथ जिस रेट से हो रहा था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी स्टार्टेड दिस टू लिबरलाइज आवर इकोनॉमी. इट स्टार्टेड फ्रॉम 1985 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी. इट ऑल स्टार्टेड, एंड यू मस्ट रिमेंबर 1985 इज द सेम year when in USSR this the economic reforms took place. They started to took place under the presidency of Gorbachev. This perestroika and glasnost, these were adopted there, है ना. So in India also the modification in the economic policy started to take place in 1985, and finally in 1991 we adopted a new economic policy, है ना. And under this economic policy we have gone for this globalization, liberalization and privatization.
है ना, हमने इस तरह से डीरेगुलेट करना स्टार्ट किया. वी स्टार्टेड टू डीरेगुलेट आर सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जैसे पहले हमारे यहाँ ट्रेड पे बहुत सारे रेगुलेशंस थे. कोई भी इंपोर्ट होना है, एक्सपोर्ट होना है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी. लेकिन अब आफ्टर दिस 1991 ये सारे जो बैरियर्स थे वो हटा दिए गए. इसी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट वाज आल्सो not allowed freely in our country. So foreign direct investment was adopted. Now in our country the capital from outside can be invested in our country without any regulation, or we can say the lengthy process or the barrier which was there, that there should not be more than 50% से ज़्यादा का investment नहीं होना चाहिए बाहर का, जॉइंट में हो सकता है. तो ये सारे जो ऑब्स्ट्रक्शंस थे नाउ दे आर ओवर, एंड व्हाट वी कैन से दैट it will be not an appropriate time to say that whatever new policy was adopted which was based on this concept of globalization, liberalization and privatization was actually it has successful. We cannot say it right now because this is not the proper time, because so many things are yet to be seen. अभी बाकी है consequences देखना. We are still in the process, and what is important, economic growth is not only important. What is more important, that the benefit of this economic growth should be distributed equally. What is important, that there should be reduction in the gap between the rich and the poor. So that is the most important aim of globalization. Okay, and now we see resistance to globalization. Globalization के लिए जो resistance हो रहा है, why there is resistance to globalization? क्यों इसके against बात होती है, क्यों हम इसको रोकने की बात करते हैं कि that there should not be this process of globalization. So we have discussed about it that this globalization is a very contentious subject. Contentious matlab it has so many people who are supporting this idea. There are so many people who are opposing this idea. So it's a contentious issue, it's a contentious subject on which there is lack of consensus among the people, and we see that so many strong criticisms are there against this globalization. There are critics of globalization who make so many arguments, like the leftist. The main critic of this globalization are the leftist. Okay, what is the view of these leftists? These leftists are of the view that this globalization represents a particular phase of global capitalism that makes the rich richer and the poor poorer. This rich is few and the poor is more. So what is the main issue? The main issue or the main criticism by the leftists are that this is increasing the gap between the rich and the poor. है ना? Because we have seen the political consequences as well. In the political consequences, we have seen that the sovereign power of the state is corroding. है ना? There is erosion, there is corrosion of the sovereign power of the state. And when the state is becoming less powerful, it is obviously going to affect the poor people. Because जो भी states के programs and policies होते हैं, they all are for the poor section of the society. अब जब स्टेट अपनी काम अपने हिसाब से नहीं कर पाएगी, द स्टेट इज़ नॉट एबल टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इंटरेस्ट एंड ओन कंसर्न. इट हैज़ टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द MNCs, देन इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बैडली अफेक्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो दिस इज हैपनिंग, है ना? द स्टेट इज बिकमिंग वीक एंड दिस इज कॉजिंग रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पुअर सिटीजन्स, पुअर पीपल. Okay, and then we see that this in political terms we see that the critics are of the view that it is weakening the state.
है ना. The power of the state is weakening first of all. Then economically we see that the critics of globalization, they want a self-reliant system should come back. In this globalization we are not self-reliant. We all are yes, connected to each other, we all are linked to each other, we all are dependent on each other. So that essence of, or the, we can say the element of self-reliance is missing in this concept of globalization, and that is very important. Our aim is to become self-reliance, है ना. आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये है आत्मनिर्भर, है ना. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर नहीं हो पाता है. एंड अगर कल्चरली भी हम देखें तो जो क्रिटिक्स है उनका ये कहना है कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है उनको हार्म किया जा रहा है, एंड people are losing, people are forgetting their age old values and ways, isn't it? So these are the criticisms of the leftists on all front. On political terms, the state is becoming weak, and the weakening of the state leads to the poor condition of the poor also, है ना. Then in economic terms we see that this liberalization is causing this harm to the concept of self-reliance. It is causing more and more dependence on outer world, and moreover it is also increasing the gap between the rich and the poor. And on the cultural aspect, we see that the critics are of the opinion that the Western culture is being imposed on us. We are forgetting our own values and cultures and all. So we see that this is the criticism of criticism of globalization. This is the reason for resistance to globalization. This is the reason that there are many who are of the opinion that the globalization should be resisted. We don't need globalization. Okay. And now if we see that if there is anti-globalization movement, okay, so in order to participate in this anti-globalization movement, we also need to do by global networks only, na? How will we connect? How the people who are against globalization will connect? They will connect using the tools of globalization only, this social media. That is the only tool through which we can be connected. So यहाँ पर this is important to understand that anti-globalization movements do participate in global networks, allying with those who feel like them in other countries. How will we ally with those who are like-minded people, who are thinking like us, जो resist करना चाहते हैं? उन सबको हम कैसे एक साथ जोड़ेंगे? Using these global networks only, है ना. So एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट जो है, एक्चुअली इट इज़ नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट क्रिटिसाइज्ड. व्हाट इज क्रिटिसाइज्ड इज the specific program of globalization, because a specific program of globalization is a form of imperialism. It is causing imperialism, it is causing colonialism, है ना. तो इसलिए उसका हम क्रिटिसाइज करते हैं. द आइडिया इज नॉट बैड. हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, what are the different aspects of globalization, that is criticized, because one of the aspect of globalization is the recolonization of the developing countries of the world. So that is not acceptable, है ना. उसका आपको क्रिटिसाइज करना है, आपको ग्लोबलाइजेशन के आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं करना है. दैट इज इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देन दैट इज लाइक मूविंग बैकवर्ड. यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, यू आर मूविंग बैकवर्ड. दैट कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड. Okay, so what we find that in 1999 at the World Trade Organization ministerial meeting, what happened that there were widespread criticism, widespread protest at Seattle, and the allegation was that unfair trading practices was adopted by economically powerful states, है ना. जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट हैं वो बहुत ही अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, और इसके लिए
WTO का जो मिनिस्ट्रियल लेवल का सिएटल में मीटिंग हो रहा था उसमें इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया कि इस तरह से जो पावरफुल कंट्रीज है दे शुड नॉट अडॉप्ट these unfair trade practices which are in favor of the developed countries and which are against the interest of the developing countries, है ना. And in this meeting only it was argued that the interest of the developing world were not given sufficient importance in evolving global economic system. When you are evolving a new economic system which is based on globalization, liberalization and privatization, then the focus should have been on the interest of the developing countries, but it has not been given proper attention. इसी तरह से one more forum is there, World Social Forum. This World Social Forum is another global platform, and this brings together a wider coalition composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth, women activists. These all are there in this World Social Forum, and these all are opposed to neoliberal globalization. They are against this neoliberal globalization, and the first meeting of this WSF World Social Forum was held in Porto Alegre, that is in Brazil, and in 2001, and fourth WSF meeting was held in Mumbai in 2004, and the latest WSF meeting was held in Brazil in 2018. You have to remember the first meeting, WSF की first meeting कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? 2001 Brazil, पोर्टो एल्ग्रे. एंड देन इंडिया में कौन सी मीटिंग हुई? फोर्थ मीटिंग हुई. कहाँ पर? मुंबई. एंड देन लेटेस्ट मीटिंग जो हुई है वो 2018 की आपके पास इंफॉर्मेशन है, दैट वाज हेल्ड इन ब्राज़ील. सो दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. इसमें आपको जो क्यों रेजिस्ट किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स जो हमने अभी लिखा था. लेफ्टिस्ट का ये आर्ग्यूमेंट है, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक दोनों. लेकिन यहाँ पर आपको ये बात क्लियर करनी है कि जो भी ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, दे आर नॉट अगेंस्ट द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बट उसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट को लेकर के वो उसके अगेंस्ट है. और ये स्पेसिफिक एस्पेक्ट है कि इट इज़ रिकोलोनाइजेशन. इट इज़ नॉट, वी कैन से द ग्लोबलाइजेशन इज डन इन सच अ मैनर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट पेड प्रॉपर अटेंशन. एंड फॉर दैट पर्पस ओनली वी हैव सीन कि किस तरह से WTO में मिनिस्ट्रियल लेवल का जो मीटिंग हुआ सिएटल में, उसमें इस बात को सामने लाया गया. एंड देन WSF के बारे में देना बहुत ज़रूरी है, वर्ल्ड सोशल फोरम, है ना. सो वर्ल्ड सोशल फोरम की इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसकी मीटिंग कब कब हुई, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. एंड नाउ वी विल कम टू दिस इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. इंडिया के साथ ग्लोबलाइजेशन का क्या कनेक्शन है वो हमने देख लिया. कैसे हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करते हुए 1985 से जब हमारा ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पा रहा था, तो फिर हमने स्विच किया, हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया, हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा ग्रोथ रेट तो हाई हुआ है, बट देयर इज़ नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इक्वली, है ना, अमंग द रिच एंड द पुअर. वो अभी बाकी है. नाउ वी विल सी कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, हाउ द ग्लोबलाइजेशन इज रेजिस्टेड इन इंडिया, है ना. इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. ये रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन अभी हमने ओवरऑल किया था पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में. अब हम कर रहे हैं इंडिया एंड रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करने में, वो उसमें हम देखते हैं कि सोशल मूवमेंट्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं. सोशल मूवमेंट्स, जो मूवमेंट सोशल इश्यूज़ को लेकर हुए हैं, वो उनको हम कहते हैं सोशल मूवमेंट. और इन मूवमेंट्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन हेल्पिंग पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड फाइंडिंग वेज टू डील विथ मैटर्स दैट ट्रबल देम. The matters which are causing trouble to them, they stood against those matters. They raised their voice, they started a movement, है ना. इस तरह से बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी बेस्ड जो मूवमेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में हुए, जो कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट था,
है ना। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडिया में कई सारे डिफरेंट क्वार्टर से आया। लाइक अगर हम देखें तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ये दो मेन हैं जो कि जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का क्रिटिसाइज किया, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। ठीक है, अब ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट में क्या है, ये यू हैव द आइडिया, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ये सब चीज़ें हम लोग बार बार कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट कौन हुए? लेफ्टिस्ट वो होते हैं जिनको हम सोशलिस्ट कहते हैं या कम्युनिस्ट कहते हैं, है ना। अब ये जो लेफ्टिस्ट हैं दे ऑलवेज सपोर्ट द कॉज ऑफ पुअर पीपल, है ना। ये हमेशा पुअर पीपल के कॉज को सपोर्ट करते हैं एंड दिस इज द रीज़न दे प्रोटेस्ट टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिकॉज द लिबरलाइजेशन इज बेनिफिशियल ओनली फॉर द रिचर फ्यू, है ना। बेनिफिशियल है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा तेज हो रहा है, लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ द रीज़न द लेफ्टिस्ट आर अगेंस्ट दिस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ये जो लेफ्टिस्ट का जो हमें क्रिटिसिज्म दिखता है वो जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, CPIM, CPI-ML, ये सारे जो हमारे लेफ्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके थ्रू हमें दिखता है इनका क्रिटिसिज्म, इनका रेजिस्टेंस। And other than this there are social forums also like Indian Social Forum है जो कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का एक फोरम है जो कि रेजिस्ट करता है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को, है ना। इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स है उनका ट्रेड यूनियन है, ये ट्रेड यूनियन जो है वो भी कई बार प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना। जब भी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं तो उनसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरह की से जो हमारी इकोनॉमी मोल्ड हो जाती है, जो कि जो रिच सेक्शन है उसके लिए बेनिफिशियल होता है बट पुअर सेक्शन के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है। तो जो भी हमारी ट्रेड यूनियन है वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फार्मर्स का यूनियन है वो इसके लिए प्रोटेस्ट करती है कि जो भी गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज़ बनाई है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसका वो रेजिस्ट करती है। जैसे अभी हम जान रहे हैं हमारे यहाँ जो फार्म लॉज बने हैं वो फार्म लॉज के कारण जो फार्मर्स हैं उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट आ रहा है। तो ये जो प्रोटेस्ट फार्मर्स की तरफ से आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जो फार्म लॉज बने हैं वो हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग था उस पर वो सारा कुछ चेंजेस ला रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब इसको बहुत सारे इसमें स्पेकुलेशंस भी हैं। तो ये जो मेन जो प्रोटेस्ट का रीज़न है ये यही है कि हमारी जो फार्मिंग जो सेक्टर था उसको जो एक तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रोटेक्शन अब ख़त्म होता जा रहा है। तो इस कारण से फार्मर्स का प्रोटेस्ट रहा। तो दीज ऑल आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, है ना। इसके अलावा यही नहीं और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे पेटेंटिंग की प्रॉब्लम है। जैसे कुछ प्लांट्स है, नीम है जो कि इंडिया का प्लांट है जिसके यूज़ हम लोग मतलब एंशिएंट टाइम से नीम हमारे यहाँ यूज़ होता आया है। हमारे जो भी मेडिसिनल बुक्स हैं उनमें नीम का एंशिएंट मेडिसिनल बुक्स हैं उनमें नीम का मेंशन है। बट दिस प्लांट हैज़ बीन पेटेंटेड बाय अमेरिका एंड अमेरिकन एंड यूरोपियन फर्म्स। जो अमेरिका के यूरोप के मल्टीनेशनल फर्म्स हैं उन्होंने इसको पेटेंट करा लिया है। तो ये क्या है? दिस इज़ ऑपोजिशन, पीपल आर अगेंस्ट दिस। ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। कि चीज़ हमारी है, यूज़ हम कर रहे हैं, जानकारी हमारे इसके बारे हमारे पास इसके बारे में है और पेटेंट कौन करा रहा है? पेटेंट अमेरिकन और यूरोपियन कंपनी करा रही है। तो लेफ्टिस्ट जो हैं उनका सारा का सारा जो है वो इसी पर बेस्ड होता है। अब अगर राइटिस्ट को हम देखें तो राइटिस्ट जो है उनका जो मेन क्रिटिसिज्म होता है या रेजिस्टेंस होता है ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कल्चरल। अगर इसको हम देखें तो इसको हम इकोनॉमिक कहेंगे, है ना।
इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ये जुड़ा हुआ है इनका रेजिस्टेंस। लेफ्टिस्ट इसलिए रेजिस्ट करते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस है उसको लेकर वो करते हैं। अगर राइटिस्ट को हम देखें तो राइटिस्ट जो है वो रेजिस्टेंस करते हैं ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कंसिक्वेंसेस को लेकर, कल्चरल कंसिक्वेंसेस। और ये राइटिस्ट होते कौन है? राइटिस्ट उनको हम कहते हैं जो कि प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, इनको हम कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं। दोज हु वांट टू प्रिजर्व द पास्ट और वी कैन से टू कंजर्व द पास्ट। जो हमारी पीछे की चीज़ें हैं उनको वो बचा के रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो हमने जिन चीज़ों को, हमारा जो पहले का जो तरीका था, लाइफस्टाइल, कल्चर के एलिमेंट वही सही थे। हमें जो इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वेस्टर्न कल्चर का, वो गलत है ना। तो इनका ये कहना है कि जैसे फॉरेन टीवी चैनल्स, आजकल हमारे टीवी में हम टीवी ओपन करेंगे, हमें उसमें फॉरेन चैनल्स नज़र आते हैं। हम जब फॉरेन टीवी चैनल्स के सीरियल्स को हम देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ की जो टीवी सीरियल्स है, वहाँ की जो मूवीज़ है, वो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ की आइडियोलॉजी, जो सोसाइटी की थिंकिंग है, जो सोसाइटी की आइडियाज़ है, उसके अकॉर्डिंगली बनी हुई है। अब हम यहाँ, हमारा कल्चर डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, बट हम देख रहे हैं वहाँ की बनी हुई मूवीज़ को, हम देख रहे हैं वहाँ की सीरियल्स को, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कल्चरल गैप जो है वो बढ़ता जाता है। हम नॉट वी कैन से कि हम अपने कल्चर को छोड़ के उस कल्चर को अडॉप्ट करने लग जाते हैं, बिकॉज हम वही देख रहे हैं दिन रात। अगर हम अपने टीवी में हर समय फॉरेन चैनल्स ही देख रहे हैं तो हमारा कल्चर जो है वो फोर्सिबली एक तरह से चेंज होने लगता है। तो ये हर चीज़ के लिए इनका जो राइटिस्ट है वो उसकी अपोज करते हैं कि फॉरेन टीवी चैनल्स नहीं आने चाहिए केबल नेटवर्क्स की तरफ से। फिर जैसे जो डिफरेंट डेज़ का सेलिब्रेशन होता है, लाइक न्यू ईयर, 1 जनवरी को जो न्यू ईयर मनाया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अपोज्ड बाय द राइटर्स, बिकॉज उनका कहना है कि हमारा नया साल तो चैत्र माह में स्टार्ट होता है विक्रम संवत के हिसाब से, तो वो इसको भी अपोज करते हैं। वैलेंटाइंस डे का सेलिब्रेशन होता है, उसको वो अपोज करते हैं। और इसमें कई बार मॉरल पुलिसिंग की भी आप बात सुनते होंगे, जिसमें कि जो इस तरह के एक्टिविस्ट होते हैं, राइटिस्ट एक्टिविस्ट होते हैं, वो अगर किसी लड़की ने उस तरह के वेस्टर्न आउटफिट में है तो उसको वो असॉल्ट करते हैं, उसको वो परेशान करते हैं, इसको मॉरल पुलिसिंग का नाम दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ जो हैं वो रेजिस्टेंस का रीज़न है फ्रॉम द राइटिस्ट विंग, ठीक है। तो ये दोनों इंडिया में दोनों तरफ से, लेफ्टिस्ट भी इसके अगेंस्ट है, राइटिस्ट भी इसके अगेंस्ट है, बट एट द सेम टाइम व्हाट वी फाइंड कि अगेंस्ट होने के बावजूद आज के समय में अगर देखा जाए तो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है वो इस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं जाएगी। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एंड विथ दिस चैप्टर एक्चुअली वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट बुक, है ना। जो पहला बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड नाउ वी हैव द सेकेंड बुक। द सेकेंड बुक इज़ पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें अभी तक आपने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डील किया, है ना। अब नेक्स्ट बुक जो है उसमें इंडिया की पॉलिटिक्स है, वो भी 1947 जब की इंडिया को आज़ादी मिलती है उसके बाद से, ठीक है। अब इसकी जो बेस है वो आपकी बेस कहाँ से तैयार हो चुकी है? 11th में आपने कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ा था, है ना। योर वन पेपर वॉज कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो उसमें आपने क्या कहा, देखा था सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो डिबेट्स हैं, डिस्कशंस हैं, उन सबको आपने देखा। फिर जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको देखा, फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सारा कुछ आपने देखा। इलेक्शन कमीशन, कैसे इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलता है इंडिया में लोगों को, देन लोकल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, ये सारा कुछ। तो बेस इज़ रेडी, है ना। ये आपका बेस बन चुका है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस क्या क्या है,
ठीक है. नाउ यू आर सीइंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स की प्रैक्टिकली जब स्टार्ट हुआ पॉलिटिक्स 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, उसके बाद से जो पॉलिटिक्स के डिफरेंट नेचर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिलते, उसके बारे में वो सारी बुकें फ्रॉम 1947 टिल डेट, आज के समय तक का पूरा पॉलिटिक्स आपको कवर करना है. एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर समझ के आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द सेकेंड बुक. ओके.